Hello, my dear students. Welcome to our Ortho's second lecture. It's an important lecture, and we'll be discussing about basics, which is mainly related to growth, development, its ossification, mesenchyme, suturing, its pattern of growth, its development, resorption. All this will be discussed in today's lecture. In the previous lecture, we have discussed about cephalometrics, which is an important point. When you are reading anything, you don't read it just like a newspaper. You go through a topic, you try to recall, and on the next day, you try to revise that. So, mere reading does not help in passing any exam. You have to recapitulate whatever you have read. You have to think that suppose this is the question, what I will write. In our interview classes, you have seen that you will be asked full questions. For example, you will be asked, you explain the uh, space maintenance. So at this point of time, you should be able to recall at least 20 to 30 sentences so that you can spare at least 10 to 15 minutes of your speech. Otherwise, what will happen? You will just finish within 2 to 3 sentences, and the examiner or expert gets a chance to evaluate you more. So think that if any question is asked, you have to go in detail and answer to the point. So in today's lecture, we'll be discussing about growth. Okay. Now, how does the bones grow? From the cranial vault, from the cranial base, as well as facial skeleton. So, from orthodontics point of view, we have to consider everything because even dental malocclusion as well as skeletal malocclusion. So, our bones, cranium, cranial base, each and everything has a role in orthodontics. Now, from facial skeleton as well as cranial vault, in both these things, intramembranous ossifications. Bones formed by intramembranous ossification. Okay, then bone is placed directly into the mesenchyme. Mesenchyme is the connective tissue. In this, bone is placed. When there are two bones connected, there will be sutures in between this. Okay, so first of all, the bones for the facial skeleton as well as cranial vault developed by intramembranous ossification. Okay, bone develops into the mesenchyme. Then sutures are found between the interdigital bone. Between the bones, we find suture. Okay, between the frontal as well as parietal bone, you will find frontoparietal suture. Osteoblast and osteoclast directly involved with bone formation and bone remodeling. Okay, so during growth, you first of all understand the concept. If a bone wants to grow in this direction, so what will happen? Bone desorption as well as deposition both will happen, and in this process, the bone will grow. Okay, so both these cells are responsible for bone formation and remodeling. Cranial base. Our cranial base is mostly due to endochondral, not intramembranous. Chondral means cartilage. So cartilage will be there. First, there will be cartilage scaffold. Okay, then it will be replaced by bone. Okay, so the base of cranium develops by endochondral ossification. Cartilage scaffold is laid between the first and replaced with bone. Okay,
Synchondrosis exists between two growth plates. Okay, so there will be a cartilage with growth potential, and this formation of development of cartilage, it will be between the two growth plates. Okay, and the cells. Here we have seen that osteoblast and osteoclast were there in intramembranous ossification. Here you will find chondrocytes. Okay, this will develop into the cartilaginous growth plate. So growth occurs allometrically. Okay, in all the directions we have growth. And something important is there, with the growth, shape changes. Okay, as the mandible grows, it changes its shape. Face changes its shape. Okay, then you see that if there will be uniform growth in all direction. Okay, so what you will see that there will be something ugly like features. So both resorption as well as deposition occur, and this shape changes according with the growth. Okay, now different tissues and regions of body grow at unique rates. So they are telling that our bone tissue, its growth rate is somewhat different. Muscles growth rate is different. Cartilage rate is different. So this leads to difference in the size and shape. Now you see that the example for this is our head grows slowly, whereas the limbs grow very rapidly. Since limbs grow rapidly, our hands and legs will be more, but head does not grow with that much speed. Now we'll discuss mandibular growth. You see the pattern here. With the time or with the age, it increases in size by displacing downwards as well as forwards. Okay, so you see this diagram. First of all, this was the size, then the height as well as the direction in the forward growth will be more. Okay, so mandible, it displaces downwards and forwards, this direction and this direction. In this way, mandible increases or mandible grows. Now, where does the remodeling happen? Okay, apposition on the posterior ramus, condyle, and coronoid. It means that in the posterior side, here and here, there will be deposition. Apposition means growth or adding. Okay, some issue is going on with these students.
So you have to go in the doctor course and then this live link will be available. So here addition or apposition will be on the posterior ramus, condyle and coronoid. Okay, and resorption. Here in the anterior region there will be resorption. So in this way the bone or the mandible grows or is displaced downwards and forward. So you will be asked questions, how does mandible grow? So it grows downwards as well as it grows forwards. Okay, this way mandible size increases or growth is there. Now nasomaxillary complex. In nasomaxillary complex, you see that each and every bones, okay, are connected to each other. So they have sutures at the connection or where the bones unite. So here resorption of anterior maxilla as it gets pushed forward and downward. Okay. The same way maxilla also gets development or resorption in the anterior side when it grows. Okay. So our both bones, mandible as well as maxilla, develops in this way, downward and forward. Okay. Now cranial base. How is cranial base associated with this growth? So there will be apposition. Apposition means deposition or addition of bones of both sutures and synchondrosis. At this point, there will be apposition. There will be adding of both sutures and synchondrosis. Okay. So you see that in the base of the skull, there will be growth due to sutures and synchondrosis, the cartilages. There will be deposition between these bones. Now there are two main synchondroses where growth occurs or apposition occurs. One is spino-occipital, another is spino-ethmoidal. So you see that S is common. So sphenoid bone is mainly responsible for growth of cranial base. Okay, you can be asked question which bone is mainly involved in growth of this bone. Okay, so nasal bones, septal cartilage and cranial base gets forward and downwards. So mandible also same thing, maxilla also same thing, nasal bones also same thing. Okay, downward forward movement of the maxilla, mandible. In every growth pattern, we find the similar things. Okay, now remodeling. So bone does not only gets deposited, it sometimes get resolved, then deposit, resolve, then deposit. In this way, this process is called remodeling. Okay, this helps in proper shaping, proper directional, and proper trajectory. Some theory is there. Wolf bones consistency or pattern or structure are according to their force or their function. Okay, Wolff's trajectory of force. Bones get developed in some pattern according to the requirement of force. Now sequence of dimensional growth. ठीक है, growth
जो होता है वो कैसे होता है? तो फर्स्ट द बोन्स गेट ट्रांसवर्स ग्रोथ, ओके, देन anterior posterior, in the anterior direction and posterior, first transverse and then vertical, okay. So you see that first of all the bones develop mediolaterally, that is transverse. Second, posteriorly, eh, anterior and posterior, and last they get height, vertical. Now you will think that why last there is vertical growth. So by the time teeth finishes, all these teeth are erupted. Teeth needs occlusion. So this vertical movement of this maxilla and mandible will help to gain or achieve occlusion. Okay. Now sometimes you see that during growth, you see that some mandible or maxilla is backward in growth. Okay. So you see that during this development there is class 2. Okay, mandible is small. So with the help of our orthodontist, we can gain or promote mandibular growth so that this class 2 is avoided. ओके, ये जब मिक्स्ड डेंटिशन होता है, जब टूथ का डेवलपमेंट होता है, तब हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे कि मैंडिबल तो बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, ऑर्थोडोंटिस्ट को या फिर ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी से या फिर नॉर्मल मैकेनिज्म से मैंडिबल की ग्रोथ बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंडिबल मैक्सिला के कंपैरिजन में छोटा है और क्लास 2 है। इसको नॉर्मल लाने के लिए मैंडिबल की ग्रोथ हम प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे प्रमोट किया है ग्रोथ, कैसे करोगे आप एक हेड गियर का अप्लायंस यूज करोगे जिससे मैंडिबल आगे ग्रो करे और आगे पुल हो जाए। ठीक है, फिर ट्विन ब्लॉक भी आएगा। वो क्या है ट्विन ब्लॉक? पेशेंट जब बाइट करेगा तब मैंडिबल को वो आगे पुश करेगा। ठीक है, आगे मैंडिबल को मूवमेंट देगा। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके क्लिनिक पर एक पेशेंट आया, क्लास 2 है उसको और उसका भी डेवलपमेंटल स्टेज है, तो आप कौन कौन से अप्लायंस यूज कर सकते हो? एक तो आया हेड गियर, और दूसरा आया ट्विन ब्लॉक। ट्विन ब्लॉक क्या होगा, पेशेंट ट्विन ब्लॉक लगाएगा और जब मेस्टिकेटरी फोर्स आएगा, च्यूइंग प्रोसेस होगा, तब जाके वो फोर्स मैंडिबल को आगे पुश करेगा। ठीक है, तो ऐसे कहीं ना कहीं आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लास 2 के लिए कौन कौन से अप्लायंस है। अब क्लास 3 के लिए कौन कौन से अप्लायंस है? क्लास 3 में क्या है, मैक्सिला छोटा है, मैंडिबल बड़ा है, तो मैक्सिला को आगे लाने के लिए प्रोट्रूसिव हेड गियर, आप देख लो यहाँ पे मैक्सिला को आगे लाना है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्लास 2 के लिए सर्वाइकल हेड गियर, सर्वाइकल हेड गियर क्या करेगा, दो चीज करेगा, मैक्सिलरी ग्रोथ, मैक्सिला की ग्रोथ को अटकाएगा और मैंडिबल को आगे लाएगा। ठीक है, और ट्विन ब्लॉक, ट्विन ब्लॉक क्या करेगा, जब पेशेंट बाइट करेगा, मेस्टिकेशन करेगा, ओक्लूजन में लाएगा, तब मैंडिबल को वो फॉरवर्ड पुल करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए।
फिर आता है, अब कुछ ना कुछ साइंटिस्ट है जो ऑर्थोडोंटिस्ट है, वो कहीं ना कहीं रिलेशन करके बैठ जाते हैं। तो इन्होंने ये दिखाया कि अगर आपको स्केलेटल यानी कि बोन का ऑक्लूजन और टीथ का ऑक्लूजन, ठीक है, उसको रिलेशन में रखना है आपको, ठीक है, स्केलेटल ऑक्लूजन रिलेशनशिप, मैक्सिला और मैंडिबल का ऑक्लूजन, उसके रिलेशन को कैसे प्रिडिक्ट किया जाए, कैसे इंटीग्रेशन किया जाए। तो उन्होंने सेला और ग्लिनर्ड फोसा, वो दोनों के बीच रिलेशन रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये आएगा आपका ग्लिनर्ड फोसा और ये आपका आएगा सेला टर्सिका, ठीक है, नीचे वाला ग्लिनर्ड फोसा। अब वो दोनों के बीच दो टर्म्स दे दिए उन्होंने, ठीक है, एक एक्स दिया, ठीक है, जो एंगल बनता है ये वाला, उसको एक्स दिया, और ये जो बनता है ये वाई दिया, ठीक है। तो ये लोगों ने क्या किया, थोड़ा रिलेशन बनाए कि एक्स और वाई का जो एंगल है उस हिसाब से हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो अगर एक्स स्मॉल आया तो क्लास थ्री होगा, ठीक है। क्लास थ्री का मतलब क्या हुआ, एक्स का एंगल स्मॉल है तो मैंडिबल ज्यादा नीचे रहेगा और मैक्सिला यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है, ये मैक्सिला है और ये मैंडिबल है, ठीक है। तो स्मॉल एक्स रहेगा यानी कि ये जो एंगल है वो मैंडिबल को लंबा करेगा, तो क्लास थ्री ऑक्लूजन आएगा। स्मॉल वाई यानी कि क्या है, ये जो है ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ठीक से पेशेंट बाइट नहीं कर पाएगा, इसलिए ओपन रहेगा। तो अगर आपको ये समझना है तो भी समझ सकते हो डायग्राम के साथ, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में तो थोड़ा रट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स लीजिए, यहाँ पे वाई लीजिए, यहाँ पे स्मॉल लिखिए, यहाँ पे क्लास थ्री लिखिए, यहाँ पे ओपन बाइट लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लार्ज लिखिए, तो क्लास टू आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डीप, ठीक है। ऐसा टेबल भी बनाकर भी आप रट सकते हो, ठीक है। और डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ ही है, एक्स अगर ज्यादा होता है तो मैंडिबल छोटा होगा और मैक्सिला बड़ा होगा, इसलिए क्लास टू ऑक्लूजन हम देंगे, ठीक है, उसका नाम या स्केलेटल ऑक्लूजन। और अगर लार्ज वाई आता है, ठीक है, ये लार्ज वाई आया तो क्या होगा, पेशेंट का जो मैक्सिला होगा ना वो ओवरलैप कर देगा मैंडिबल को और डीप बाइट आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डायग्राम देखकर आपको समझाया है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ी हिंट भी लगा सकते हो, वाई है ना, वो आप ऐसे समझिए कि मैक्सिला की हाइट, तो वाई अगर ज्यादा है तो मैक्सिला की हाइट ज्यादा होगी, तो नीचे वाले दांत को कवर कर लेगा, तो हम बोलेंगे कि वो डीप बाइट है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कोरिलेशन करके याद रख सकते हो। फिर वाई स्मॉल है यानी कि मैक्सिला की हाइट छोटी है, तो क्या होगा, नीचे और ऊपर के दांत कंबाइन नहीं होंगे, ओक्लूजन नहीं होगा और ओपन बाइट आएगा। सेम वे यहाँ पे देखिए, स्मॉल एक्स और लार्ज एक्स, तो एक्स यहाँ पे मैक्सिला है, उसकी लेंथ, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिला की हाइट थी, यहाँ पे मैक्सिला की लेंथ। स्मॉल एक्स मतलब मैक्सिला छोटा है, तो क्लास थ्री ऑक्लूजन हम देंगे नाम उसको,
और लार्ज एक्स यानी कि ये मैक्सिला, ठीक है, लेंथ ज्यादा है, तो मैंडिबल छोटा होगा तो उसको बोलेंगे हम क्लास 2। तो ऐसी टेक्निक से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। आप अपनी बुक में ये नोट कर लीजिए, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक है, फिर आप ये आराम से नोट करके आपको याद रखना है। एग्जाम में ये आ सकता है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके 4 हो गए। यूपीएससी में अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको ये फायदा रहेगा। ये नोट कर लीजिए, तब तक मैं दो आता हूँ 2 मिनट में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। थोड़ा इजी है, लेकिन ऐसे शॉर्टकट्स आपने आपको याद रखने पड़ेंगे। अब मेथड्स ऑफ एसेसिंग ग्रोथ, ठीक है, कैसे ग्रोथ को एसेस किया जाएगा। पहले तो आएगा क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, उसकी एज के हिसाब से। 9 इयर्स तक उसको प्री प्यूबर्टल बोलेंगे, बाद में 14 इयर्स के बाद उसको पोस्ट प्यूबर्टल बोलेंगे, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकल एज है। फिर अलग अलग ग्रोथ की आती है डायमेंशन, साइकोलॉजिकल, फंक्शनल, सोशल। लेकिन हमारे लिए जो काम की चीज है ना, वो है एनरिच्ड मैच्योरेशन, ठीक है। ये आपके हॉस्पिटल में भी काम आ सकता है। जब आप जॉब करने जाओगे ना, तब आपको एज एस्टिमेशन का केस पेपर आएगा कि आपको ये पेशेंट का एज एस्टिमेशन करना है। तो आपको तो कुछ नहीं करना है, टीथ नंबर ऑफ प्रेजेंट जो है अंदर, उस हिसाब से उसके इरेप्शन एज को कोरिलेट करना है और अप्रोक्सीमेट एज बोलना है, ठीक है, लिखना है। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि रेडियोलॉजी है उनके साथ कोरिलेट करके पक्की एज पता चलेगी। तो रेडियोलॉजी वाले क्या करेंगे, यही करेंगे, ठीक है। ये वाले हेनरिस्ट मैच्योरेशन मेथड करेंगे, ठीक है। एज की एपिफेसिस, ऑसिफिकेशन, कैपिंग, इस हिसाब से वो एज एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली ये लोग बता रहे हैं कि कैसे ग्रोथ हम मेजर करते हैं, ठीक है। फिर सर्वाइकल वर्टिब्रल मैच्योरेशन मेथड। एक तो आपको बताया हैंड रिस्ट के जो कार्पेल्स होते हैं, उसके मैच्योरेशन से एज का पता चलता है। फिर वर्टिब्री जो होती है सर्वाइकल, उससे भी पता चलता है, ठीक है। ऐसे शेप्स के आपको पता चलेगा कि ये शेप में ऐसा मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब आता है नया टॉपिक, ग्रोथ का टॉपिक पूरा हुआ।
यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, ठीक है? फिर हम आगे नया टॉपिक चालू करते हैं, सीरियल एक्सट्रैक्शन। तो सीरियल एक्सट्रैक्शंस क्या है? आपको कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, लेकिन कोई सीरियल में या ऑर्डर में। ऐसा नहीं कि तीनों के तीन निकाल दो एक साथ, ठीक है? ये प्लान करके सीक्वेंशियल रिमूव करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमको कोई ना कोई स्पेस चाहिए, या इन शॉर्ट प्रॉपर ऑक्लूजन चाहिए। प्रॉपर ऑक्लूजन के लिए किसी भी दांत को सीक्वेंस में निकालेंगे, ठीक है? और धीरे धीरे ऑक्लूजन को मेंटेन करेंगे, नॉर्मल करेंगे, वो प्रोसीजर को सीरियल एक्सट्रैक्शन हम बोलेंगे। अब कब कब देना होता है, ठीक है? ये आपका इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन है। तो क्लास वन ऑक्लूजन में दे सकते हो, ठीक है? नो मिसिंग टीथ, ठीक है, तभी भी दे सकते हो। नो एक्टोपिक टीथ, मिनिमल ओवरबाइट, प्रोट्रूसिव डेंटिशन और सिग्निफिकेंट क्राउडिंग, तभी आप सीरियल एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है? क्लास टू में नहीं दे सकते हो, क्योंकि क्लास टू में एक मैंडिबल तो छोटा ही है, तो फिर आप थोड़ी मैंडिबल में वो एक और दांत निकालोगे, ठीक है? तो ऐसे इंडिकेशंस उसके क्या क्या है, ठीक है? फिर आएगा सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है? तो देखिए कि जब परमानेंट लेटर्स आएंगे ना, ठीक है, तब आपको क्राउडिंग दिखेगा, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, आप ये क्राउडिंग अगर दिख जाए आपको, ठीक है, तो आपको पहले प्राइमरी कैनाइंस निकाल देना है, ठीक है? प्राइमरी कैनाइंस मतलब सी, याद रखना। फिर आपने देखा कि और एक दांत निकालने की जरूरत है, ठीक है, तो आप डी निकाल दो, और उसके बाद फर्स्ट परमानेंट प्रीमोलर यानी कि फोर, ठीक है? तो सी डी फोर एक सीक्वेंस बन गया, और ये निकालने के बाद आपको प्रॉपर स्पेस बन जाएगी। जो क्राउडिंग था ना, उसको आपने ओवरकम कर दिया, और 12 से 14 साल में आप ऑर्थो की ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो ये सी डी फोर है, ये कोई साइंटिस्ट ने दिया होगा, कुछ साइंटिस्ट ने अलग दिया है। ऐसे तीन आता है, डेवेल, वीड और नान्स, तीनों ने अलग अलग दिया है। किसी ने सी डी फोर दिया है, किसी ने सी फोर डी दिया है। ऐसे करके आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? देखो यहाँ पे आए ना, यहाँ पे पहले आप सी करोगे, फिर फोर आएगा, और फिर डी आएगा, ठीक है? ऐसे भी आप कर सकते हो। अलग अलग टाइप के वेरिएशंस होते हैं इसमें। अब सीरियल एक्सट्रैक्शन का रिजल्ट क्या है, ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या है? तो टीथ स्ट्रेट कर सकते हो आप, अलाइनमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि उसको दांत निकालने के बाद प्रॉपर स्पेस मिल जाएगी मूवमेंट के लिए। फिर कैनाइंस इरप्ट हो सकते हैं अटैच्ड जिंजाइवा में, ठीक है? कभी कभार क्या होगा, कैनाइंस
बाहर इरप्ट करेंगे, स्पेस नहीं मिलेंगी तो बकली, लेकिन ये ठीक से अंदर इरप्ट करेंगे। सीरियल एक्सट्रैक्शन से आप स्पेस क्लोज भी कर सकते हो और ट्रीटमेंट टाइम आप कम ले सकते हो, मतलब यू कैन शॉर्टन योर ट्रीटमेंट टाइम। ठीक है, तो सीरियल एक्सट्रैक्शन का इन शॉर्ट ओक्लूजन जल्दी से लाना है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को जल्दी से पूरा करना है, इसके लिए वो एक हेल्प करता है। परफेक्ट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं है वो, ठीक है, वो एक खाली एक अप्रोच है जिससे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एनहांस होती है। अब सीरियल एक्सट्रैक्शन का डिसएडवांटेज क्या है? तो कभी कभार मैंडिबुलर के जो सेकेंड प्रीमोलर होते हैं ना, वो मूव हो जाते हैं थोड़े मिजेली। ठीक है, स्पेस चली जाएगी, फोर निकाल दिया तो फाइव थोड़ा मिजेली मूव होगा। और आपको पता ही है, प्रोस्टोम में करवाया था तब स्पी आई थी, कर्व ऑफ स्पी, यानी कि एंटेरो पोस्टीरियर कर्व, फिर मीडियोलेटरल कर्व ऑफ विल्सन। ठीक है, ये सब सीरियल एक्सट्रैक्शन से क्या होगा, थोड़े चेंजेस आ जाएंगे कर्व ऑफ स्पी में, कर्व ऑफ विल्सन। और अगर आपने नीचे के दांत निकाल दिए तो क्या होगा, थोड़ी ओवरबाइट भी हो जाएगी। तो अब ये चार चीजें यहाँ पे देखी आपने, उसके डिसएडवांटेजेस। तो आपका एमसीक्यू कैसा बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज? ठीक है, कौन, ये तो तीनों सब लिखे डिसएडवांटेज, लेकिन आपको पूछा गया है नॉट अ डिसएडवांटेज। ठीक है, नॉट अ डिसएडवांटेज, इसमें से तीन होंगे, और जो नीचे डिपेंड और बैठे ना, वो डीप बाइट रख देंगे खाली। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सीरियल एक्सट्रैक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, देखो ये आपका क्राउडिंग का केस हो गया। ठीक है, ये कैनन यहाँ पे बाहर आ गया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें पहले सी निकाल दोगे, फिर डी निकाल देंगे और फोर निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे आप सीरियल एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले समझाया कर्व विल्सन क्या है। जो नीचे के मोलर्स है ना, उसकी सरफेस से दूसरे मोलर्स की सरफेस पर जो कर्व बनेगा उसको बोलेंगे कर्व ऑफ विल्सन, मीडियोलेटरल कर्व। अगर आप भूल जाते हो मीडियोलेटरल है कि क्या है, तो ये डब्ल्यू है ना, उसको उल्टा कर दो तो एम हो गया, और एल तो यहाँ पे है ही, तो मीडियोलेटरल। ठीक है, ये है कर्व ऑफ स्पी। ठीक है, आगे के जो कैनन होंगे ना, वहां से स्टार्ट होगा और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ फेमस से वो पार होगा, ये कर्व ऑफ स्पी। अब ये दोनों कर्व को अगर इकट्ठी कर दें, कंबाइन कर दिया जाए, तो एक स्पीयर बनेगा जिसका सेंटर होगा यहाँ पे ग्लेबेला। ठीक है, नोज के ऊपर, फोrehead के नीचे, वहाँ ग्लेबेला होता है, वो सेंटर होगा। और एक ये दोनों, ये मीडियोलेटरल और ये आगे वाले, उसको कर दोगे तो आप स्पेरिकल शेप ले लेगा वो, उसको बोलते हैं मॉनसून स्पीयर। ठीक है, यानी कि एंटेरो पोस्टीरियर कर्व्स और मीडियोलेटरल कर्व्स को दोनों को एक साथ कंबाइन कर देना है, तो बन जाएगी मॉनसून कर्व। और मॉनसून कर्व जो होता है उसका सेंटर होगा ग्लेबेला। ठीक है, अब क्लेफ्ट लिप और पैलेट, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन क्रेनियोफेशियल एनोमली है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो क्लेफ्ट इज द मोस्ट कॉमन क्रेनियोफेशियल एनोमली। ठीक है, कभी कभार वो इनकम्प्लीट होता है, कभी कभार कंप्लीट, कभी कभार यूनिलेटरल, और कभी कभार बायलेटरल। ठीक है, 90 70% केसेस में वो
कोई सिम्टम्स नहीं होते उसके, या कोई सिंड्रोम के साथ जुड़े हुए नहीं होते, अकेले ही पाए जाते हैं। अब क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करने के लिए 3 to 5 months का टाइम है। क्लेफ्ट पैलेट को 9 to 12 months, ठीक है, यानी 1 साल पहले उसकी ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए बच्चे की। क्लेफ्ट लिप होता है या क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। अब क्लेफ्ट के साथ और कौन कौन से प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं। पहले आता है कैरीज, ठीक है। तो जहाँ पे क्लेफ्ट होता है, टीथ उसके आजू बाजू वीक होते हैं और कैरीज उसमें ज्यादा होता है, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल एनोमलीज, ठीक है। क्लेफ्ट लिप के साथ टीथ भी थोड़े इम्पैक्टेड होते हैं, सुपर न्यूमेररी होते हैं, ऐसे अलग अलग देखने को मिलेगा, कभी कभार एब्सेंट भी मिलेगा। फिर मैनेजमेंट ऑफ फिस्टुला और स्पीच, तो जो क्लेफ्ट पैलेट होगा उसमें आप देखोगे तो ओरोनेजल फिस्टुला होगा, यानी कि पैलेट खराब है, तो नोज और ओरल के बीच कैविटी है, खड्डा है, तो उसको बोलेंगे ओरोनेजल फिस्टुला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ प्राइमरी रिपेयर भी कर सकते हैं। फिर वेस्टिबुलर फिस्टुला, ठीक है, तो कब करेंगे, तो हम एल्वियोलर ब्लोन जो है ना, उसको ग्राफ्टिंग कर देंगे, ठीक है। और अगर वेस्टिबुल में फिस्टुला है तो नेजल कैविटी क्लोज्ड है, तो कोई रिगर्गिटेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर पैलेट में डिफेक्ट है तो आपको प्रोस्टोडोंटिक्स वाला ऑब्चुरेटर लगाना है, ठीक है। स्पीच में भी दिक्कत है तो स्पीच की भी थेरेपी करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आएगी क्लेफ्ट लिप और पैलेट जब होगा ना, तब स्पीच और फिस्टुला का मैनेजमेंट। फिर एलुलर ब्रोन ग्राफ्टिंग, आपने देखा कि एलुलस जो है वो डिफेक्ट है, तो आप क्या करोगे, कहीं से बोन लेकर वहां पे प्लेस कर दोगे और उस पर फ्लैप लगा दोगे, तो उसको बोलेंगे हम एलुलर बोन ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो कहाँ से ले सकते हो, तो इलियाक क्रेस्ट, ठीक है, हमारा जो इलियाक बोन होता है ना, वो कार्टिलेजिनस होता है और उसका शेप भी अच्छा होता है, ठीक है। इस हिसाब से वो फर्स्ट प्रायोरिटी बोन है ग्राफ्ट के लिए। कॉन्डाइल में भी वही आएगा, ठीक है। उसका ग्राफ्ट लगाना है तो आइडियली इलिया क्रेस्ट का जो शेप है ना, वो बेस्ट है, ठीक है। तो ये टाइमिंग भी देख लीजिए यहाँ पे, एल्यूलर बोन की ग्राफ्टिंग हम कब कर सकते हैं, 8 से 10 साल का बच्चा होता है ना, तभी हमको करना है, उससे पहले भी कर सकते हैं लेकिन उसके बाद नहीं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा लिखा है कि कैनाइन का डेवलपमेंट होता है ना, उसके रिलेशन में आपको ये एल्यूलर बोन ग्राफ्टिंग करना है, तो यानी कि 8 से 10 साल में वो आइडियल स्टेज होता है। अब एल्यूलर बोन ग्राफ्टिंग के इंडिकेशंस क्या क्या है, तो एक बात समझ लीजिए कि कोई डिफेक्ट है एल्यूलर बोन में, तो उसके इंडिकेशंस क्या क्या है। तो यहाँ पे कोई खड्डा होगा उसको निकालना है, फिनिश करना है, तो एलिमिनेट ओरोनेजल फिस्टुला, स्टेबलाइज करना है ग्रोथ को, एस्थेटिक्स अच्छा करना है, ऑक्लूजन अच्छा करना है,
इरप्शन को सपोर्ट देना है, प्लेटफॉर्म देना है दोनों को ग्रोथ के लिए। तो ये इंडिकेशंस आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सोच के बनाना पड़ेगा, ठीक है? फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्राफ्ट सक्सेस। एल्यूलस आपका डिफेक्ट है, वहाँ पे खड्डा है, खराब है एल्यूलस, तो आप ग्राफ्ट करोगे तो उसके लिए सक्सेस हो जाए ग्राफ्ट, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो पहले तो डिफेक्ट का साइज, फिर कंडीशन ऑफ रिसेप्टेंट साइट, सोर्स ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, आपने कहाँ से बॉन्ड लिया है, फिर डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए, सर्जन स्किल, और पेशेंट भी अच्छा होना चाहिए, वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, वो मोटिवेटेड होना चाहिए कि उसको एडिक्शन नहीं करना है जब ये ट्रीटमेंट चालू है तब, ठीक है? तो ये सारे फीचर्स एलिगर बॉन्ड ग्राफ्टिंग में काम आएंगे। फिर आता है फेशियल एसिमेट्री एंड माल ओक्लूजन। क्लेफ्ट लिप और पैलेट, तो आपने देखा होगा कि उसमें फेशियल एसिमेट्री भी होती है और माल ओक्लूजन। तो फेशियल एसिमेट्री को निकालने के लिए अभी तो बच्चों के लिए मोल्ड भी आते हैं, प्रोस्टोडोंटिस्ट बनाते हैं, ठीक है? एक तो ऑर्थोडोंटिक थेरेपी कर सकते हो, नेजो एल्वियोलर मोल्डिंग भी कर सकते हो, पेशेंट को ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना है, ठीक है? एल्वियोलर ग्राफ्टिंग भी कर सकते हो। फिर जो खराब दांत है उसको निकाल देना है, फिर ऑब्चुरेटर देना है। तो यानी कि प्रोस्टो, ऑर्थो, ओएस, जितने भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है इसमें, ये अच्छी तरह से एक्टिव करके फेशियल एसिमेट्री को अटकाना है और माल ओक्लूजन को अटकाना है, ठीक है? तो ये चीजें आपको क्लेफ्ट लिप और पैलेट की बात जब करेंगे इंटरव्यू में, जब प्रीलिम में पूछा जाएगा, तो ये सब आपको पक्का याद होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है? एक तो ऑर्थोडोंटिक्स में आप नेजो एलोलर मोल्डिंग कर सकते हो, ठीक है? फिर एलोलर का डिफेक्ट भरने के लिए ऑब्चुरेटर भी दे सकते हो, फिर ग्रोथ असेसमेंट कर सकते हो, मैक्सिलरी एक्सपांशन दे सकते हो, रैपिड मैक्सिलरी एक्सपांशन, ठीक है? फिर डायस्टेमा को निकाल सकते हो, इंसाइजर अलाइनमेंट भी कर सकते हो, ठीक है? डेफिनिटिव ऑर्थो भी कर सकते हो, फिर प्रोस्थेटिक रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ये क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, किसके लिए? फेशियल एसिमेट्री और माल ओक्लूजन को निकालने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए। फिर एलोलर बोन ग्राफ्टिंग में आपने देखा, ठीक है, उसके इंडिकेशंस और उसके फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। फिर स्पीच और फिस्टुला का डिफेक्ट, फिस्टुला में आएगा ऑब्चुरेटर और स्पीच में आएगा प्रॉपर प्रोस्थेसिस, ठीक है? न्यूमेरिकल एनोमलीज, तो सुपरफिशियल सुपरन्यूमेरल टीथ हो सकते हैं, माल अलाइन टीथ होंगे, एब्सेंट होंगे, एनोडोंशिया होगा, ये सब उसके साथ एसोसिएटेड है, और कैरीज भी उसके साथ एसोसिएटेड है क्लेफ्ट लिप के साथ, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या सीखा? ग्रोथ के बारे में सीखा, ठीक है, उसमें कोई डाउट है तो बताइए। सीरियल एक्सट्रैक्शन के बारे में सीखा कि कैसे होता है, कैसे कैसे सीक्वेंस है, CD4 आएगा, D4C आएगा, C4D आएगा, ऐसा ऑक्लूजन, वो जो सीरियल एक्सट्रैक्शन है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग पैटर्न दिया है, डबल ट्विडर नांस, ठीक है? फिर हमने देखा कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट के साथ क्या क्या रिलेशन है और कैसे उसको अवॉइड करना है, ठीक है? फिर हमने ये भी सीखा कि क्लास 2 को इंटरवेंट करने के लिए हेड गियर यूज करोगे, ठीक है? क्लास 3 को यूज करने के लिए प्रोटेक्टिव हेड गियर यूज करोगे, क्लास 2 के लिए ट्विन ब्लॉक भी यूज कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा आपको रिवीजन करना है, बार बार ये लेक्चर देखते रहोगे तो आपको एज्यूम भी होगा, कभी कभार तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि मैं ही पेशेंट हूँ, मेरा क्लास 2 है तो ये यूज कर सकते हो। अलग अलग ये लेक्चर देखते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे, अलग अलग एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्लेफ्ट लिप के बारे में, क्लेफ्ट पैलेट के बारे में, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं हम। आज आपको कोई डाउट्स हो तो हमको बताइए।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूट्यूब पर ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको ये चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारी वेबसाइट की जो लिंक है वो ऑलरेडी यहाँ पे दे दी है। इस पर जाके आप अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, डेंटल नोट्स, यूजफुल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज, सारी कंटेंट अवेलेबल है वेबसाइट पर। एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, डेंटल नोट्स जो कि आप 6 महीने में ही डेंटल का कोर्स पूरा कर सकते हो। और आपको कोई दिक्कत है तो आपको व्हाट्सएप करना है, कमेंट करके बता सकते हो। हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे। ये हमारा एकेडमी का पहला ही कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को पर्सनल अप्रोच मिले, पर्सनल गाइडेंस मिले, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझना आता है या कोई भी टॉपिक आपको बार बार रिपीटेड रिवीजन करना है तो आप हमको भी बोल सकते हो, हम आपका लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है गाइस। आपको अगर हमारे एप्लीकेशन की लिंक है तो ये वेबसाइट पर जाकर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। एप्लीकेशन का नाम है A to Z ऑनलाइन ऑनलाइन कोचिंग, एक ऑनलाइन एग्जाम कोचिंग। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही फायदे कारक है। हम आपको जो गाइडेंस दे रहे हो कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू एग्जाम में काम आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा। तो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, हैव a nice time and good night.